دنیا کی عظیم قومیں اپنے بچوں کو پرائمری سے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، پرائمری سے انہیں تیار کر کے نوجوانی کی حالت میں تیار کر کے پھر ایسی قومیں بنا لیتی ہیں کہ جو ناقابل تصویر ہوتی ہے۔ امریکہ آج سے 200 سال پہلے اس نے یہ کام کیا، اپنے نوجوان پہ انویسٹمنٹ کی، کوئی اس میں گوگل کا چیئرمین بن گیا تو کوئی جناب وہاں پہ مائکروسافٹ بنانے لگ گیا، کسی نے ایپل کمپنی بنا لی، کسی نے کوئی بوئنگ کمپنی بنا لی، کسی ایویں نہیں ہو جاتا ہے ایک دن بھی یہ ساری بات۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے آج سے 200 سال کوئی ہوگا اللہ والا، کوئی ہوگا جس نے ان کو اس انداز میں ان کی تربیت کی اور تیار کیا، اور اس وقت وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے۔ یہ ساری کمپنیاں، یہ سارا کمپیوٹر، یہ ساری ایڈوانسمنٹ ادھر سے آ رہی، ٹیکنالوجی ساری ادھر سے آ رہی۔ تو میرے عزیزوں، میرا ماننا یہ ہے، میرا جاننا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوان کو اچھی طرح ٹرین کر دیں تو یقیناً پاکستانی قوم بھی بدل سکتی ہے۔ یہ میرا ماننا، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 6 ماہ کے اندر اپنی اولاد، سبھی اولاد اور آپ میں بالکل ڈفرینس نہیں سمجھتا، میں جو باتیں ان کو بتاتا ہوں وہی لا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک قرض ہے قوم کا، وہ ہم قرضہ اتار رہے ہیں جی۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے ہاں نظام تعلیم میں اوور آل ملک کے اندر ان باتوں کا رواج نہیں ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے بتانا یہ کیا ہے۔ ایک مثال سے آج آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا دیں گے اور پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح اپنی لائن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جناب؟ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ میوزک۔ What is difference between shore and music? Can anybody tell me about this? آپ میں سے کوئی بتا سکتا؟ جھجک کے بغیر، بالکل پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے دے کے بھیجیں۔ What is difference between shore and music? Music appeals to our senses. یہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اگر وہ پازیٹیو ہو، ہماری جو یعنی کہ ہماری جو احساسات ہوتے ہیں، جو ہماری مینس کے انر فیلنگس کو بھی یہ کرتا ہے، جنریٹ کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے، مینیپولیٹ بھی کرتا ہے اف اٹ از پازیٹیو کانوٹیشن میں ہو، اور ادروائز while on the other hand the noise makes us annoyed. ہمیں وہ تنگ کرتا ہے۔ یہ تو ایک جنرل کنسیپٹ ہے کہ میوزک ہمارے کانوں کو بھلا لگتا ہے جی، اور یقیناً یہ اچھا ہر چیز بری نہیں ہوتی، ہم نے ہر چیز کو جناب وہ ایک ٹیگ لگا دیا، ہر چیز کا استعمال غلط یا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ میوزک تو قوالی میں بھی استعمال ہوتا ہے جی، اور قوالی میں استعمال ایک بڑی سینس ہے، بہت سارے لوگ اس سے بڑا سیکھتے ہیں، بڑا تصوف کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو میوزک اٹ سیلف برا نہیں ہے، اس کا یوز ہمارا اگر پازیٹیو لے لیں تو پازیٹیو ذہن قوالی والی سائڈ پہ نکل جائے، ویری گڈ۔ اگر اس کو جناب دوسری سائڈ پہ لے شیطانیت کی طرف لے جائے تو وہ اس کا استعمال برا ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ چلے میں آپ کی اتنی رہنمائی کر دیتا ہوں کہ دراصل شور ہی میوزک میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ شور وہی چیز ہوگی، اس کو ہم میوزک میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میرا سوال ہے کہ یہ کیسے کنورٹ ہوتا ہے؟ ہر کام کا اپنا ایک شور ہوتا ہے، یعنی ایک مزدور ہے تو وہ اینٹیں بنا رہا ہے، اس کا بھی ایک شور ہے، لیکن اسے اپنے کام سے لگا ہے، اسے وہ میوزک لگ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی ہماری رومیں چل رہی ہیں، ہم روموں کے پاس ریگنیٹی کھڑا نہیں ہو سکتے، لیکن جو ورک کر رہے ہیں ان کے لیے وہ میوزک ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بات کو مزید سمپلیفائی کر دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شور کو میوزک میں کیسے
म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है? असल यहाँ से आपको बात समझानी है आज की, बस लंबी बात ही कोई नहीं। जी बताएं, कोई ज़हन लड़ा है? वैसे आपकी जो सुबह मेरे पास 2 क्लासेस पढ़ रही होती है, लड़कियों की क्लास से पूछा उन्हें नहीं पता था, मैंने बॉयज़ की क्लास को पूछा तो एक लड़के ने फ़ौरन मुझे आंसर दिया, फ़ौरन आंसर दिया, और मैंने उसके लिए क्लैप की कि शोर को म्यूज़िक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आज का क्वेश्चन बताएंगे। कोई थोड़ा सा ज़हन दौड़ाए, आप ज़हन दौड़ाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। पता है कि नहीं पता? कुछ ज़हन लड़ाए। चले मैं आपकी और आसानी पैदा कर देता हूँ। शोर और म्यूजिक के अंदर चीजें सेम होती हैं। शोर और म्यूजिक के अंदर चीजें सेम होती हैं। अब फर्क क्या है ये आपने मुझे बताया। शोर को तरतीब दो तो वो म्यूजिक बन जाता है, कानों को भला लगना शुरू हो जाता है। अगर स्टूडेंट की जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाए तो वो कामयाब हो। ये आज आपको बात मैंने समझा। एक नाकाम शख्स और एक कामयाब शख्स में पता है क्या फर्क होता है? सिर्फ डिसिप्लिन का फर्क होता है, नथिंग एल्स। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि डिसिप्लिन कैसे हमने अपनी लाइफ में लेके आए? ये कामयाबी की जमानत है डिसिप्लिन। एक नाकाम शख्स और कामयाब शख्स में अगर आप उसका एनालिसिस करें, उसका जरा उसका एक्सरे करें, आपको साफ नजर आएगा कि वो जिम्मेदार था और जो नाकाम शख्स है वो गैर जिम्मेदार। डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन जो इंसान को सिखाता है वो इस्लाम है, जो इंसान की लाइफ को, मुसलमान की लाइफ को सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन सिखाता है। ये मशीन जो अल्लाह ने बनाई, हमने ये दुनिया की मशीन बनाई ना, तो हम इसके पैरामीटर्स इंसान सेट करता है। ये जो मशीन अल्लाह ने बनाई, इसके पैरामीटर अल्लाह सेट करके देगा। ये इंसान का बस का रोग नहीं है कि इसके पैरामीटर सेट करें। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद भेजा और साथ हुजूर अलैहिस्सलाम शरीयत के जरिए पूरा एक लाए अमल दे दिया कि इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। सबसे बड़ा डिसिप्लिन आपको नमाज सिखाती है। सूरज की किरणों से पहले आप उठ जाते, ऐसे 5 वक्त आप वुजू करते, आपका एक एक मिनट आपके फिंगर टिप्स पे होता है। ये काम जोर के बाद करना है, ये असर के बाद करना है, ये मगरिब के बाद करना है, ये फलां टाइम करना है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना बड़ा मुश्किल है। अंग्रेज़ों ने बड़े जतन करके बड़ी मुश्किलात के बाद अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर ढाल लिया, मुसलमानों को देखते देखते जी। लेकिन एक मुसलमान को डिसिप्लिन में आना वेरी इजी, बहुत आसान है मुसलमान के लिए डिसिप्लिन में आना। सबसे पहले वो अर्ज की थी ना कि हमने अपनी बुनियादी चीज़ें जब सेट कर लेंगे तो ज़िंदगी ऑटोमेटिक कामयाबी की तरफ बढ़ती जाएगी। लो जी, सबसे पहला डिसिप्लिन आपको नमाज सिखाती है। आप सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अपने कामों की तरतीब में लग जाते हैं। और ये अगर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाए, यकीन माने 50% मीडियोकर स्टूडेंट हो, इतना ज़हीन ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट ना हो, ज़हीन ना हो, सिर्फ डिसिप्लिन ज़िंदगी में आ जाए, वो कामयाब हो जाए। एक बड़ा कामयाब, बड़ा काबिल स्टूडेंट ज़हीन है, जनाब फौरी तौर पे याद कर लेता हर चीज़ को, उसकी ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं आता तो नाकाम हो जाए। मेरे अजीज़ों, इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं पहले सेल्फ मैनेजमेंट। दुनिया हम तालीम दे रहे हैं क्या जी, और जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फलाना फलाना फलाना। और मैं उधर गया एक BZU यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, और जब हम एंटर हुए, VC साहब के ऑफिस के इस तरफ ऊपर लिखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ सराइकस था, है जी। आई वॉज सरप्राइज।
दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक सराइकी में फंसे हुए। और हमने सराइकिस्तान से लेना क्या? हम वो नॉलेज अपने औलाद को, अपने बच्चों को क्यों ना दें जिसकी उन्हें कदम कदम पे ज़रूरत है। और कदम कदम पे किस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ये एनालिसिस किया कि सबसे पहली जो बात जो स्टूडेंट को तालीम देनी चाहिए वो मैनेजमेंट की ऊपर तालीम देनी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट की ऊपर तालीम, कि पहले बंदा अपने आप को मैनेज करना सीखे, उसके बाद फिर अगली तालीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बाद में शुरू। जब जिंदगी मैनेज नहीं है, मैं बड़ी बात तो नहीं आपसे करता कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें सिर्फ मैनेजमेंट की तालीम दी जाती। आपको पता है उस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले तलबा ही अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं। अंग्रेज़ों को ये बात आज से 200 साल पहले समझ आ गई थी कि असल तालीम तो मैनेजमेंट की तालीम। अगर आपने अपने आप को मैनेज, सुबह उठते ही आपने अपनी चीज़ों को ये वो, मैं एक नौजवान को जानता हूँ, यकीन जाने, वो 9 बजे अगर उसने ड्यूटी पे जाना होता तो 7:45 बजे उठ के जनाब वो भागा, और मेरी जुत्ती किधर है जनाब, मेरी जुराब किधर नस गई जनाब, ये हो गया जनाब, कपड़े कोई ये वो। 9 बजे वो भागता है जनाब, मैं उसको देखता हूँ भागता है जनाब, मोटरसाइकिल कितनी कोई मोटरसाइकिल थी, ये जा रहे आगे किसी ने जाके मार दी थी। और यकीन जाने घर वाले कहते वो भाई नाश्ता तो कर ले यहाँ पे, तो क्या मेरे पास है। At the end of the day, he was badly failed in his career. मैं आपसे पहले भी जिक्र, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो सिर्फ 8 जमातें पढ़ा हुआ। उसकी खुसूसियत क्या थी? अब उसकी मैनेजमेंट, उसने अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रखा? हमेशा अपनी ड्यूटी से आधा घंटा पहले पहुंच जाता, ऑलवेज अपनी ड्यूटी से आधा घंटा पहले पहुंचा। यकीन माने वो कामयाब हुआ और जब रिटायर हुआ तो 80 लाख रुपया मिला, 8 जमातें पढ़े हुए। तो मैंने ये एनालिसिस निचोड़ निकाल दिया जिंदगी का, ये जमानत है जिंदगी। आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में डाल लें, अपने दिन की तरतीब रूटीन बना लें, अपनी ज़िंदगी में भागम भाग वाली चीज़ें ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स सुकून में लेके आए, जो काम करना है उसका प्री प्लान करें। आपने कहीं जाना है तो घंटा पहले जनाब उसका सारा इंतज़ाम कर लें। ये हमारे यहाँ शादियाँ होती है, यकीन जाने जो नाअहल लोग होते हैं, नाकाम होते हैं, शादी वाले दिन भागे होते हैं, चीज़ें लेने वाले दुकानें खुली होती है। और जिनकी मैंने मिसाल दी उनके यहाँ शादियाँ उन्होंने की, यकीन जाने वो 1 महीना पहले हर चीज पहले करके बैठे थे, सुई तक 1 महीना पहले रह गए। वक्त पे पैनिक नहीं होता, बंदा भागता नहीं है, परेशान नहीं होता, टेंशन नहीं। मेरे अजीज आज का पैगाम बहुत के बाद लंबी होगी थोड़ी सी, मैं चाह रहा था शार्ट करके 2 मिनट में खत्म, लेकिन माजरत कभी बात बड़ी हो। याद रखो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेके, और अगर 1 मिनट में डिसिप्लिन चाहिए तो 5 वक्त की नमाज शुरू। मैं जमानत देता हूँ जिंदगी ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में डाल जाएगी जी। जब तक अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं डाले, आप समझ लीजिए बैठे टाइम ज़ाया हो रहा है, अपना शफा मार लीजिए, कोई नहीं यार आज तक दिन है खैर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई, कुछ पाने के लिए खोना, कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है। कुछ हासिल करने के लिए कुर्बानी, वो कुर्बानी डिसिप्लिन की बात है, जिंदगी को डिसिप्लिन डालना। हर चीज़ का एक टाइम स्पेन सिलेक्ट कर लो कि हमने ये काम ये करना है, इस टाइम करना, और ये सारी एक रूटीन के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर। पढ़ाई भी है तो पढ़ाई का एक मखसूस टाइम हो, इतना आज हमने पढ़ना है और उसका इतना टाइम हमने खेल में देना जी। इस तरह अगर लाइफ आप बसर करेंगे तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि कामयाबी आपके पीछे पीछे चलेगी। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे ही उठ गए तो ठीक है सारा दिन गुजर गया,
اور پھر جناب شام کو رات کو سو گئے، تو اس طرح زندگی گزارنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے کہ سارے مل کے اپنی زندگی کو ڈسپلن بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں پرانے وقت کا ایک چھوٹا سا آخری جاتے جاتے کہ جناب کو کوئی کسی دوسرے علاقے سے اس نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے بولا، مسلمان جن کی زندگی میں ڈسپلن تھا، وہ دیکھا تو ایک بندے جو ایک جناب وہ وہاں پہ عام سے بندے وہ کسی جگہ پہ آرام کر رہے تھے، تو اس نے کہا یار یہ تو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ہمارے یہاں تو بادشاہ بڑے جاؤ جلال اور پتہ نہیں ان کے آگے پیچھے اور زیورات اور پتہ نہیں کیا۔ جس قوم میں ڈسپلن آ جاتا ہے اس میں پھر یہ جواہرات، ہیرے، زیورات، اپنا جاؤ جلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ڈسپلن آپ کی پاور اور طاقت بن جاتا ہے اور آپ کو کامیاب کر دیتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔